Good morning students. Saturday in teacher chapter is completed. So now today we are going to start chapter number 2, fraction and decimal. Everyone should open page number 28. Everyone should open page number 28, fraction and decimal. In this chapter we have discussed the fractions, type of fractions and also our decimals. What is a fraction? What is fraction? When we write a term in the form of A upon B, that is called a fraction. There are many types of fraction. First is decimal and vulgar fraction, proper and improper fraction, like and unlike fraction, mixed and mixed fraction, fraction in simplest form of or a lowest form, equivalent fraction. These fractions are discussed today. So now when we write 3/10, how can you write in decimal form? 0.3 in decimal fraction. Fraction. First key term is fraction. A fractional number or simplify a fraction is a number of the form a over b, where a and b are whole numbers and b is not equal to 0. In simple word, fraction is a number having numerator and denominator. The number above the bar is called numerator and number below the bar is called denominator. So fraction is consist of two parts, that is numerator and denominator. Numerator is above the bar and denominator is below the bar. Here next key terms are, first one is decimal fractions. Fractions having denominator as 10, 100, 1000 or any other higher power of 10 are called decimal fractions. For example, 3/10, 14/100, 6/1000, 319/10,000. These are the decimal fractions. Next one is proper and improper fractions. Proper fractions are those fractions having numerator less than denominator. In proper fraction, numerator is less than denominator. For example, 3/7, and here numerator is 3 and denominator is 7. So 3 is less than 7. Next is improper fraction. Improper fraction, fractions having numerator greater than or equal to denominator are called improper fractions. For example, 15/8. Now 15 is numerator and 8 is denominator. Numerator is greater than denominator. Next one is like and unlike fractions. Fractions having same denominators are called like fractions, that is 4/11, 6/11, 2/11, 9/11. In all these fractions, denominators are same, that is called like fraction. And in unlike fraction, denominators are different. Where denominators are different is called unlike fraction, and where denominators are same is called like fraction. Next one is mixed number. Mixed number means it is consist of a whole part, matlab it is consist of whole part and improper fraction. Number consist of whole part, that is a, and proper fraction, that is b by c. दोनों को मिक्स करके एक नंबर बनता है, that is called mixed fraction. Next one is, next all the key terms are finished. So we will start with exercise with key sums, that is exercise 2A.
its first sum is add or subtract. Write in simplest form. You have to add or subtract and write in simplest form. Simplest form means जो आंसर आएगा लास्ट में आपने कटिंग करनी है, जहाँ तक कटिंग हो सकती है, ठीक है, वहाँ तक करनी है आपने. देखो सबसे पहले 9/19 प्लस 1/19. Here the denominators are same. When the denominators are same, there is no need to take any LCM. So here LCM is 19. 9 plus 1 is 10. So here the answer is 10/19. Second sum is 16/35 minus 9/35. Here the denominator is 35. 16 minus 9. 16 minus 9. 16 minus 9 is 7/35 is equal to 1/5. 1/5 is the answer. Next one is third sum. 7/9 plus 1/8. Here 9 and 8 denominators are different. When the denominators are different, you have to take LCM to make the denominator same. 9 and 8. So here the LCM is 72. So make the denominator 72. 9 multiply 8 72. 7 multiply 8 56. Similarly, we have to multiply 8 with 9, so we will get the denominator 72. Here we get 56/72 and 9/72. Add them and we will get 65/72 is the answer. So here we conclude that when the denominators are same, there is no need to take any LCM. Just add or subtract. When the denominators are not same, you have to take LCM and make the denominator same, then add it. Next is subtract. Here also the denominators are different, 12 and 4. So we will find the LCM. Here we will get the LCM, that is 12. So make the denominators same. Here 11/12 and 9/12. Now the denominators are same. It is easy to subtract. 11 minus 9 is equal to 2/12. 11 minus 9 2/12. So 1/6 is the answer. So 1/6 is the answer. Now next exercise is next sum. Yes, simplify. Here there are how many fractions? 1 2 3 fractions. So all the denominators are different. So in this case we will take LCM, and here the LCM is 42. Now make the denominator 42. 7 multiplies 6, we will get 42 and 18. 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get 42. 14 multiply 3 42. So add them and 18 plus 2 is 20. 20 में से 3 निकाले 17, we will get 17/42 is the answer. Next simplification is 1/2 minus 1/4 plus 5/8. Here also the denominators are same, so we will take LCM, and LCM we get 8. So make the denominator 8. Make the denominator 8. 1/2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4/8. This is 2/8 and 5/8. Here 4/8 minus 2/8 plus 5/8. We will get 4 minus 2 plus 5/8. 4 minus 2, 2. That is 2 plus 5/8 is equal to 7/8.
next sum is compare. You have to compare them. Here 1 by 4 plus 1 by 7 and 1 by 12 plus 5 by 6. 1 by 4 plus 1 by 7, that is 1 by 4 multiply 7 multiply 7, that is 7 by 28. Here 4 by 28. Add them. इन दोनों को ऐड कर दो and we will get 7 by 28 and 4 by 28. 11 by 28, 1 by 12 and 5 plus 5 by 6. So make the denominator same and we will get 11 by 12. So here we get 11 by 28 and 11 by 12. So here 11 by 28 and 11 by 12. Now their denominators are not same. It is difficult to find that which fraction is greater. So in this case we will cross multiply it. Cross multiply, we get 132 and 308. As we know that 308 is greater, so this is greater. Means 11 by 12 is greater than 11 by 28. So this one, starting, this is greater than this. Next exercise 2b. Next exercise is 2b. First multiply 2 by 3 multiply 11 is equal to 22 over 3. 4 over 9 multiply 15. So when to make the multiplication easy, अगर कोई कटिंग हो रही है तो you have to cut the numbers. 9 and 15 दोनों 3 के टेबल पे आते हैं. 9 कहाँ पे आता है? 3 पे. 15 5 पे. So we will get 5 multiply 4 multiply 5, that is equal to 20. 20 by 3 is your answer. Next one is find the product of first 3 by 5 multiply 15 by 16 multiply 4 by 7 is equal to 9 by 28. देखो 5 के टेबल पे 15 कहाँ पे आता है? हमेशा जो कटिंग होती है ऊपर नीचे होती है कटिंग. क्रॉस में भी कटिंग हो जाती है एंड सामने सामने कभी भी कटिंग नहीं होती. We are doing sum number second. Find the product of first part we have done. Now it's the second part. 2 1 by 7, 2 4 by 9, 7 by 22, 15. So as we know that how to solve the mixed fraction. First of all 7 multiply 2, that is 14 plus 1, 15 over 7. Here 9 multiply 2, that is 18. 18 plus 4, that is 22. 22 over 9. Here 7 by 22. Now cut the terms, that is 3 के टेबल पे 9 3 पे आता है, 15 आता 5 पे. So we will get, we are left with 5 and 3. So we get 5 by 3. 5 by 3 is your आंसर. फाइंड द प्रोडक्ट. जब भी आपको आ जाए आपने देखना सबसे पहले कि कटिंग कितनी हो रही. कटिंग हमेशा ऊपर नीचे करनी होती है, कभी भी सामने सामने कटिंग नहीं होती. क्रॉस में कटिंग हो जाती है और ऊपर नीचे कटिंग होती है. कभी सामने सामने हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है. कटिंग से क्या होता है कि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो ईजी हो जाती है और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आती है. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट. Find the value of 3 by 4 of 32 किलोग्राम. सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 32. अब 4 के टेबल पे 32 ईजिली, क्योंकि 4 के टेबल पे 3 तो आता ही नहीं. 4 के टेबल पे 32 ईजिली 8 पे आता. 8 3 सर
24, इट मीन्स आपके पास आंसर आ गया 24 किलोग्राम, 24 किलोग्राम. नाउ इट्स सेकेंड पार्ट, 2/7 ऑफ 1 वीक. इट मीन्स 1 वीक में कितने डेज होते हैं, हाउ मैनी डेज आर देयर इन 1 वीक, दैट इज 7 डेज. 7 और 7 की आपस में कटिंग हो जाएगी एंड यू विल गेट 2 डेज, एंड यू विल गेट 2 डेज. इन दिस क्वेश्चन देखो 1 वीक था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेज में, 7 डेज. 7 की 7 से कटिंग होगी एंड वी आर लेफ्ट विथ 2. इट मीन्स आवर आंसर इज 2 डेज. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 5/8 ऑफ 20 मीटर. 5/8 मल्टीप्लाई 20 मीटर. अब देखो 8 और 20 दोनों किसके टेबल पे आ रहे हैं, 4 के टेबल पे आ रहे हैं. 8 2 पे आता है और 20 जो है वो 5 पे आता है. एंड वी आर लेफ्ट विथ 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 2. सो वी विल गेट 25/2. हेयर द आंसर इज 25/2 मीटर. यूनिट आपने मस्ट है कि वो लगाने ही लगाने हैं, नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई. फोर्थ सम इज सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है. 2 4/5 ये भी मिक्स्ड नंबर में गिवन है. 3 1/10 ये भी मिक्स्ड में है. मल्टीप्लीकेशन 1 1/2 ये भी मिक्स्ड में है. जब भी आपको क्वेश्चन मिक्स्ड में दिया हो, कभी भी वर्क मिक्स्ड में नहीं करते, हमेशा उसको चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज, इम्प्रॉपर आपको पता है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. और आपको पता है मिक्स्ड को कैसे चेंज करते हैं. 5 2s are 10, 10 और 1 14, 14/5, 10 1s are 10 और 3 13/10 और 2 1s are 2 और 1 3 3/2. हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड देम. जब भी ऐड करना, आप देखो दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट. इसका 5 है, उसका 10 है. और आपको मैंने पहले ही बता दिया है जब भी ऐड करना, अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो इट इज़ ईजी फॉर अस टू ऐड देम. अगर डिनोमिनेटर नहीं सेम देन वी विल टेक इट्स एलसीएम. 5 एंड 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10. नाउ मेक द डिनोमिनेटर्स 10. 14/5 का भी डिनोमिनेटर 10 है, 13 और 10 का तो ऑलरेडी ही 10 है. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14/5 है. 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 2 से किया, न्यूमिनेटर को भी 2 से ही करेंगे. 20/8/10 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13/10. सो वी गेट 28/10 प्लस 13/10 मल्टीप्लाई 3/2. 28 प्लस 13/10 मल्टीप्लाई 3/2 दैट इज़ 41/10 मल्टीप्लाई 3/2. अब कोई भी कटिंग नहीं हो रही क्योंकि 3 के टेबल पे 10 नहीं आता, 2 के टेबल पे 3 नहीं आता, 2 के टेबल पे 41 नहीं आता. अगर कोई कटिंग नहीं हो रही, आप सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो. अगर 41 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 123 एंड 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 20. कितना आ जाएगा, 20. ठीक है. ये सारा सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, मिक्स्ड में हमें सब कुछ गिवन था, हमने सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर में चेंज किया. उसके बाद देखा कि उसके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं. अगर नहीं सेम है तो हमने क्या किया, उसका एलसीएम ले लिया. एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर दिए, ऐड कर दिया. उसके बाद देखना कि कोई कटिंग हो रही है. अगर नहीं हो रही तो आपने सिंपली उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना. न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ कर देना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर देना. नेक्स्ट इज और नेक्स्ट पार्ट इज रेसिप्रोकल. अब सभी को पता है रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्ट कर देना. न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर को क्या बना देना, न्यूमिनेटर. न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर. अब 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/3. 1/3 का क्या हो जाएगा, 3/1.
और 5/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5। सिमिलरली अगर आपके पास आ जाए 8/19, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। नेक्स्ट 2 का रेसिप्रोकल क्या होएगा। अब 8/19 का तो रेसिप्रोकल आपके पास आ गया 19/8 एंड 2 आप बोलोगे 2 का रेसिप्रोकल तो हमें पता ही नहीं। अब जिसके नीचे कुछ नहीं ना, हमेशा उसके नीचे आप 1 लगा दिया करो, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल 1/2, ठीक है। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारा। इसमें अब गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 1। आपने बताना कि इन चारों ऑप्शन में किसका प्रोडक्ट 1 के इक्वल नहीं आ रहा। आपको चारों ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट है 4/5 मल्टीप्लाई 5/4, 1/7 मल्टीप्लाई 7/8, इधर 13/2 मल्टीप्लाई 2/3, हेयर D 4 मल्टीप्लाई 1/4। अब आपने क्या करना, सबसे पहले आपने हर ऑप्शन को सॉल्व करके देखना कि किसका जो प्रोडक्ट है इक्वल आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले 4/5 मल्टीप्लाई 5/4, आपने क्या कर देना, देखो कटिंग हो रही, 5 की 5 से हो रही है, 4 की 4 से हो रही है, तो हमारे पास आंसर आ गया 7। अब ये मिक्स्ड में है, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करो। 7 1 ज़ा 7 और 1 8/7 मल्टीप्लाई 7/8, 7 की 7 से कटिंग कर दो, 8 की 8 से कटिंग कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1, ठीक है। इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। अब जो C ऑप्शन है उसको देखो, 13/2 मल्टीप्लाई 2/3। अब 2 की कटिंग 2 से हो रही है, ठीक है, एंड 13/3 हमारे पास बच रहा है। अब ये इक्वल टू 1, ये दिस इज नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब D भी निकाल के देख लो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास 1 आ जाएगा। इन चारों ऑप्शनों में A का भी 1 आंसर आ गया, B का भी 1 आ गया, D का भी 1, बट एक C ऑप्शन है जो इक्वल टू 1 नहीं है। हमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, बिकॉज इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 13/3, ठीक है। विद दिस आर फ्रैक्शन पार्ट इज completed. Tomorrow we will do its decimal part. हमने एक पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म कर लिया, दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट। उसका हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, प्रोडक्ट किए, सिंप्लीफिकेशन की। आपने अच्छे से सभी सम्स निकाल के देखने हैं। अब आपका बेटा होमवर्क है, देयर आर 3 सम्स है। पहला मैंने आपको दिया ऐड, ये सारे मिक्स्ड में है। सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करके फिर उसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करके उसके बाद एडिशन करनी है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही करना, सब्ट्रैक्शन में भी इम्प्रॉपर में चेंज करना, फिर उसके बाद आपने एलसीएम ले लेना, उसके बाद आपने फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। कंपैरिजन भी सेम है। सबसे पहले देखो इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, पहले एलसीएम लेने हैं दोनों के, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम करने हैं, उसके बाद आपने कंपेयर करना। अगर दोनों के डिनोमिनेटर नहीं सेम आते तो आपको पता, आपने क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो पार्ट है वो ग्रेटर देन है और लेस देन।